Hello everyone. Now today we are going to discuss a very important topic of chemistry that is called as screening effect or shielding effect. So in multi-electron atoms, the electrons which are present in the outermost shell do not experience the complete nuclear charge because of repulsion, that is repulsive interactions of the intervening electrons. So I will explain this definition properly once you know the meaning of complete nuclear charge and intervening electrons. Then automatically the definition will become clear. What happens if you have a big atom? Although I have not drawn a very big atom, but if you have a big atom, then what happens is, if you see this diagram very clearly, this is the positively charged nucleus. So nucleus is positive due to presence of positive protons. This we already know. Nucleus is positive due to the presence of protons which are positively charged. So due to the presence of this positive charge on the nucleus, what happens is nucleus has a force which is called as nuclear charge. So nuclear charge is composed of what? The charge of protons. As we know, neutrons are also there in nucleus, but neutrons as such they don't have any charge. तो न्यूक्लियर चार्ज में न्यूट्रॉन्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता and your nuclear charge is properly governed by the charge of protons. So if we discuss properly, then we'll come to know this nuclear charge is of which nature? This is positive in nature. Now see further. Here is a positive center. These are the shells. See, I have written K, L, M, N. Then I told in the previous video that shells have subshells, right? Shells have subshell. Like K shell has subshell called as 1s and 1s has one orbital. This you already know. So I have already put forward a video that shells have subshells and subshells have orbitals. कहने का मतलब ये है कि शेल्स के अंदर सबशेल्स होती हैं और सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं. इस बात को भी आप इस डायग्राम से बहुत क्लियरली समझ सकते हैं. K इज अ शेल जिसके अंदर 1s सबशेल है और इस 1s में अगर आप बनाएं तो एक बॉक्स बनेगा. ये बात और क्लियर होगी अगर आप L शेल को देखते हैं. L इज अ शेल. L इज अ शेल, दैट इज अ सेकेंड शेल. इस L शेल में ये ब्लू वाला पार्ट देखें. दिस ब्लू पार्ट इज 2s. सो L हैज टू सबशेल्स, दिस ब्लू 2s and this red 2p. So there are two subshells in the L shell. And if you further will draw, 2s में एक box and 2p में 3 box. Right? This all you already know. But for better observation and better visual effects, you should understand it again so that screening effect is properly understood. Now see, third shell is M shell. M shell में क्या है? Again this blue part is 3s, this red part is 3p and this green part is 3d. What I have done is all S I have shown in blue, all p in red, d in green and only F is there क्योंकि F तो 4 से start होता है और 5th शेल मैंने बनाया नहीं है. So 4F I have drawn with pink color. अगर आप इसके आगे 5th शेल बनाएंगे तो 5S in blue, 5P in red, 5D in green, 5F in pink ऐसा बना लें तो the things will be same. तो color code use किया है so that you can visualize. M shell has again 3 subshells. 3S drawn in blue, 3P drawn in red, 3D drawn in green. फिर नेक्स्ट इज N शेल. N में क्या होते हैं? 4 सबशेल होते हैं. आप हाफ बाउ डायग्राम पढ़ चुके हैं. 4s, 4p, 4d, 4f. और अब तक आप इनकी फिलिंग भी समझ चुके हैं कि कैसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. फिलहाल हमें डिस्कस करना है स्क्रीनिंग इफेक्ट. एंड जस्ट टू गिव यू अ विजुअल इफेक्ट आई एक्सप्लेन दिस डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे शेल्स के अंदर सबशेल्स होती है और इन सबशेल्स के अंदर जाएंगे तो ऑर्बिटल्स बनेंगे. इतना बड़ा डायग्राम बना नहीं सकते, अदरवाइज आप बनाएं और इसको देखें तो आपको पूरा माइंड में इट विल बी इम्प्रिंटेड कि कैसे
ये एक शेल है, उसके अंदर 2 सब शेल हैं, ये एक शेल है, इसके अंदर ये 3 सब शेल हैं। सिमिलरली ये लास्ट वाला देखें, इससे बिल्कुल समझ आ जाएगा, बहुत क्लियर है। 4s, 4p, 4d, 4f, ये सब शेल्स हैं, ये 4 सब शेल्स हैं कहाँ, एम शेल में। तो ये पूरा गोला क्या है, एम शेल, और इस एम शेल के 4 पार्ट्स हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। तो एम शेल इज मेड अप ऑफ 4 सब शेल्स, जिसमें एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगे अंदर, इनके भी अंदर। So I hope you have understood shells, subshells and orbitals. Already you know, but this was a visualization with the help of diagram. Now see further. Screening effect की definition says that in a multi-electron atom. Multi-electron atom means ऐसा atom जिसमें बहुत सारे electrons हो. Especially जब 4f, 5f, 4d, 5d इनकी filling चालू हो जाती है तो electrons का number बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होती है, इस डायग्राम में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, एन शेल। हम इसी को एग्जांपल लेके समझ लेंगे। तो व्हाट हैपेंस, जो इलेक्ट्रॉन एफ यानी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द लास्ट शेल, वो यहाँ पे क्या है, एन शेल। वो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, सपोजिंगली आपको पता है बहुत अच्छे से 4s में 2 होते हैं, बना लें, 4p में 6 होते हैं, बना लें, सिर्फ समझने के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर बाहर के शेल्स भर गई, एक्चुअली मैं 5th लेवल बनाया नहीं है इसलिए मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं 4d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरूंगी, क्योंकि 4d कब भरेगा, जब 5s भर चुका हो। तो 5th ऑर्बिटल तो हमने बनाया नहीं, मतलब 5th शेल हमने बनाई नहीं है, इसलिए आप इस चीज को अवॉइड करें और आप ये समझ लें कि ये सारा भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सिमिलरली जितने शेल्स अंदर हैं उन सब में भी रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। So you draw the electrons like 1s has 2 electrons, then your this 2s also has 2 electrons, 2p has 6। यानी कहने का मतलब है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, k shell has 2 electrons, l shell has 8, 2 in 2s and 6 in 2p, तो टोटल 8 हो गए। Then 3s has 2, 3p has 6 and then you gone to 4s, then came to 3d, 3d में 10 electrons assume कर लें। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जो सबसे बाहर हैं, उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बारे में सोचें। अगर हम कंपेयर करें 2s का डिस्टेंस या 1s का डिस्टेंस या 3s का डिस्टेंस न्यूक्लियस से और 4s का, तो सबसे ज्यादा किसका है, 4s का या 4p के इलेक्ट्रॉन्स का। यानी जो बाहर की शेल होती है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन है, यानी बहुत बड़ा सा एक एटम एज्यूम कर लो जिसमें बहुत सारी शेल्स हैं, ठीक है, 5th शेल भी है, 6th भी है, तो अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स भरे, ये हो गई सबसे बाहर, तो आप इसे बोल देंगे आउटर मोस्ट शेल। तो आई होप आउटर मोस्ट शेल आपको समझ आ गई। उसके बाद जो अंदर शेल्स हैं, दे आर इंटरवेनिंग शेल्स। जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होती है वो इंटरवेनिंग शेल्स कहलाती है, और इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंटरनल शेल्स। आउटर मोस्ट के अंदर जितनी भी शेल्स हैं वो सब इंटरवेनिंग शेल्स कहलाएंगी। तो इस डायग्राम के हिसाब से KLM इंटरवेनिंग शेल्स हैं और N जो है वो आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सारे नेगेटिव होंगे, और ये कैसा चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको पहले से पता है अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के बाहर भाग नहीं सकते, दे कैन नॉट रन अवे आउट ऑफ द एटम। वाई, बिकॉज देयर इज समथिंग सिटिंग पॉजिटिव एट द सेंटर विच लोकेट्स। ये बिल्कुल वैसा है, सपोज ये आपकी क्लास है, ये आपका टीचर है बीच में, और ये बेंचेस हैं, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, और ये लास्ट बेंच है क्लास की। तो आप कब तक क्लास से बाहर नहीं भाग सकते, जब तक कि टीचर खड़ा है क्लास में, और टीचर अगर बहुत पावरफुल है तो बिल्कुल ही नहीं भाग सकते आप। बट व्हाट हैपेंस इज, अगर बहुत बच्चे भर दिए जाएं एक ही क्लास में, इनन्यूमरेबल अनकाउंटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक रूम में 100-200 बच्चे बिठा दिए जाएं, तो एक सिंगल टीचर का लास्ट बेंच पे इन्फ्लुएंस कितना होगा, क्योंकि बीच के बच्चे बहुत सारे हैं तो वो पीछे के बच्चों को बहुत क्लियरली देख भी नहीं सकती।
यहाँ भी वही हो रहा है, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो लास्ट की शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पा रहा जितना वो पास की शेल्स पे लगा सकता है. सो व्हाट इज द मीनिंग? दैट ड्यू टू द एक्सेस नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स द न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट वेरी मच कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये जो भीड़ है बीच की, ये किसका काम करती है? एक स्क्रीन का काम करती है, पर्दे का काम करती है और न्यूक्लियस के इफेक्ट को क्या कर देती है? ढक लेती है. इट स्क्रीन्स द इफेक्ट, इसीलिए नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये शील्ड का काम करती है. शील्ड क्या होती है? जो हमें किसी चीज से बचाती है ना. जैसे शील्ड पहनते हैं गेम्स वगैरह में, जो जैकेट्स होती हैं, दे वर्क एज अ शील्ड. तो ये शील्ड है, ये क्या कर रही है? न्यूक्लियस के इफेक्ट को शील्ड कर रही है, उसको क्या कर रही है? स्क्रीन कर रही है, सो दैट वो इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल तक उतना नहीं पहुंच पा रहा. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. तो बेसिकली what happens कि in multi electron atoms the electrons which are present in outermost shell they do not experience what the complete nuclear charge. बहुत कम सा फोर्स इन पे लगता है और ये रिपल्सिव इंटरैक्शंस हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बीच के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं. सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस? Thus, the outermost electrons are shielded or screened from the nucleus by inner electrons, and this is only is called as shielding effect. So, this was the entire definition of the shielding effect. I hope this was clear, and this is the diagram with which you can understand the shielding effect properly. I hope this was clear. Thank you for watching.